ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ है। प्रयागराज माने उत्तर प्रदेश की वो जगह जहाँ पर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी आज के दिन अपना बलिदान उन्होंने दिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर हूँ पंजाब के जलंधर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से खटकड़ कला पास है। क्रांतिकारी भगत सिंह शपथ लेते थे, चंद्रशेखर आज़ाद या और राम प्रसाद बिस्मिल चंद्र राजेंद्र लाहिड़ी जी, तो इन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। लेकिन जो इनकी शपथ थी वो पूरी हो या ना हो, उसके लिए अपनी जान भी लगा देते थे। इन्हें पूरा करना ही होता था, नहीं तो ये सोचते थे अगले जन्म में मैं इसको देश आज़ाद होता देखूंगा, अगर इस जन्म में नहीं हो पाया तो। मैंने देखा 2 साल इंतज़ार किया। उन्होंने कहा आप लैंड ले लीजिए, आप बना लीजिए। मैंने कहा आप लैंड ही दीजिए, तो उन्होंने मुझे 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन दी। उस पर बनाने का काम जो उन्होंने दी, उसका शुक्रिया, धन्यवाद योगी सरकार का। बनाने का काम हम ये HRA जो क्रांतिकारियों का संगठन है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਬਣਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚੁਣਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बहुत बढ़िया। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਤੀ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਯ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1-1 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਔਰ ਨਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, जैसे आज का मैं विषय लूँ, आज के दिन का, आज एक बहुत बड़ा दिन है। शहीद हुतात्मा चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है। लेकिन जो आपने कहा ये उसी से रिलेट करेगा मेरा जो जवाब है। आज मुझे होना चाहिए था प्रयागराज के अल्फ्रेड पर, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद पर। प्रयागराज माने उत्तर प्रदेश की वो जगह जहाँ पर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी आज के दिन अपना बलिदान उन्होंने दिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर हूँ पंजाब के जलंधर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से खटकड़ कला पास है, और पास क्योंकि मुझे वहाँ जाना था। और जाना इसलिए था कि वहाँ पर जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इन शहीदों की जो शपथ हुआ करती थी, जो हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह शपथ लेते थे, चंद्रशेखर आज़ाद या और राम प्रसाद बिस्मिल चंद्र राजेंद्र लाहिड़ी जी,
तो इन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन जो इनकी शपथ थी वो पूरी हो या ना हो उसके लिए अपनी जान भी लगा देते थे। इन्हें पूरा करना ही होता था, नहीं तो ये सोचते थे अगले जन्म में मैं इसको देश आज़ाद होता देखूंगा, अगर इस जन्म में नहीं हो पाया तो। ये थी उनकी शपथ। उस पुण्य स्थान पर जाकर ये जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक, उस पुण्य स्थान पर जाकर ये जो शपथ लेते हैं कि मैं इस प्रदेश से नशे को उखाड़ फेंकूंगा, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकूंगा। ऐसे ऐसे गरीबों को देखा मैंने जिन पर झूठे मुकदमे लगे, ठीक है। खैर, तो वो जो 2 शपथ इन्होंने ली वो पूरी नहीं हुई अभी तक। तो अभी आप पंजाब सुधारने की बात कर रहे हैं, यूपी से आके पंजाब के इसलिए आए हैं? आपने कहा ना कि क्या आप आज़ादी अभी फील कर रहे हैं? बस ये जो कमी है ना, जो हमारे राजनीतिक लोग इस तरह के जो बर्ताव कर रहे हैं, उन स्थानों पर जाकर जो पुण्य स्थान है वहां पर वो शपथ, ऐसा नहीं कि मुझे पंजाब से खबर मिली, मैं तो दूसरे प्रदेश में था जब मुझे पता चला। तो यूपी में या गुजरात में तो 300 करोड़ का ड्रग कार्टेल पकड़ा जा रहा है, तो वहां भी तो बहुत ड्रग है, वहां से तो ट्रेवल हो रहा है। देखिए वहां तो है, पर जिसने शपथ ली मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसने कहा, वहां ये नहीं कहा मैं उखाड़ फेंकूंगा, या मैं शपथ ले रहा हूं, या चंद्रशेखर आजाद जी के स्थान पर जाकर किसी ने शपथ ली कि मैं यहां पर शपथ ले रहा हूं, मैं दूर कर दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। जहां पर शपथ ली गई, जिसने कहा, तो या तो उसको पूरा करो उन शहीदों की तरह, या तो वैसी शपथ वहां पर लो। क्योंकि मैं वहां पर इसीलिए आज ये करने गया था कि यहाँ पर अगर आप इस तरह की शपथ लेंगे और आगे से दोबारा ऐसा काम होगा, तो हम चूंकि नॉन पॉलिटिकल हैं, किसी पार्टी में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक क्रांतिकारी परिवार और एक आम आदमी की हैसियत से हम यही वहाँ कहने गए थे कि आगे से ये शपथ इस प्रकार की आप मत लीजिए यहाँ पर आकर के। तो एक बात होता है ना कि आपके दिमाग में वो सब कुछ चलता होता है कि मैं शहीद के जगह पे खड़ा हूँ, उनकी स्मृति पे खड़ा हूँ, तो मैं वो कराऊंगा। अभी हम बोलें कि 2 साल पूरे हुए हैं जुमा जुमा, तो मे भी उनके एफर्ट्स तो है, आपको लगता नहीं उनके एफर्ट्स है? किसके एफर्ट्स? पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे बहुत एफर्ट्स है, हमने ड्रग पैडलिंग को हैक करना है, क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि गुजरात से भी होती है, कार्टेल आते हैं। देखिए, जो खबरें मुझे, अभी 2 साल हो गए उनको, ठीक है, इसके पहले भी मैं आया हूँ पंजाब में, वो स्थिति तब भी थी, वो स्थिति आज भी है। मेरी जो रिपोर्ट मुझे करते हैं वो कोई पार्टी के लीडर या कोई दूसरी पार्टी मुझे नहीं करती, मुझे एक आम आदमी बताता है क्या चल रहा है। मैं यहाँ के आम आदमी से मिलता हूँ आकर के, तब ये कदम उठाना पड़ता है, वरना मुझे किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ वो मुझे शोभा भी नहीं देता किसी का नाम लेना, ठीक है। तो आप कोई लहर छेड़ने वाले हैं पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ और? नहीं, लहर तभी छिड़ेगी वो शपथ यदि दोबारा नहीं लेंगे और ये भ्रष्टाचार और नशा वो दूर कर देंगे। कोई मेरा मतलब नहीं किसी पार्टी से, किसी सरकार से नहीं, मैं सिर्फ देशभक्ति पूरे देश में जगाता घूमता हूँ। हमारे देश में 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने इस शहादत को बलिदान दिया है, इस देश को बचाया है उन्होंने। वो चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो पार्टी का ना हो, इसको वो किसी भी प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेगा या शहीदों के नाम को या उस जगह को वो टच करेगा किसी ऐसे मुद्दे को लेकर के जो वो ना कर पाए या वो देश विरोधी हो, तब हम खड़े होते हैं। बाकी मैं चुपचाप स्कूलों में, कॉलेजों में जो हमारे बच्चे हैं छोटे, जो हमारे स्कूल है, एम्पावरमेंट का काम करता हूँ, उनको बताता हूँ कि तुमको नशा नहीं करना, क्योंकि मेरा मुद्दा ही नशा है, बच्चों को नशे से दूर करना। अच्छा, यूपी में क्या रेट है नशे का, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपको पता है कि कितना नशा रेट है यूपी में? यूपी में उतना नहीं है। कितना नहीं है? क्योंकि मैं रेटिंग नहीं तय करता हूँ, जैसे रेटिंग आपने कहा, मैं बहुत ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं रेटिंग नहीं तय करता हूँ। जिस हिसाब से मुझे पता चलता है कि यहाँ ज़्यादा है, उस चीज़ को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन डिसाइड करता है अभी क्या कितना ज़्यादा है, कैसे है? या आपने क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का कोई डाटा चेक किया है? डाटा देखिए, जो जनता डाटा देती है ना, उससे बड़ा मैं वो रिकॉर्ड नहीं मानता हूँ। माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो ज़्यादा हो जाती है, अगर वो गलत है, तो मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, या मैं गलत हूँ, मैं वहाँ गया आज, वो भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पर। इंटेंशनली आप सही हैं। तो मेरा क्वेश्चन, चलो मैं राजनीति में नहीं पढ़ता, मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, हमारे पीएम मोदी साहब भी तो बहुत बार बात करते हैं, कस्में खाते हैं, बड़े सारे पवित्र स्थानों पे कस्में खाई है, उनके बारे में क्या ख्याल है? कोई एक कसम बताइए।
उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, डिमोनेटाइजेशन की बात हुई थी, क्राइम कंट्रोल की बात हुई थी, रोजगार की बात हुई थी, अकाउंट्स में 15 लाख रुपए की बात हुई थी, तो इन सब में कहा। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, उन्होंने क्या कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट तो नहीं, जो मोदी जी की बात में से मेरा मेरा क्वेश्चन है ना कि एक स्टेट लेवल शहीद स्थान पर गए हो, वहां पर उन्होंने ऐसा बोला, आप मुझे बताओ। नहीं, आपको ये कंसर्न है, अच्छा आपको यही कंसर्न है कि वो शहीद के स्थान पर गए, पर अभी 2 साल हुए तो आपको लगता है कि इट विल बी वर्क, मतलब 3 साल में हो जाएगा या 3.5 साल में हो जाएगा। कई बार अब इंटेंशन की बात करता हूँ ना मैं, कि इंटेंशन साफ लग रही थी आपको तब। देखिए, जब मुझे शपथ सुने हुए 2 साल हो गए, अभी 2 साल मुझे लग रहा होगा ना, 2 साल हो गए, तो अभी तक ऐसा कुछ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आगे से वो शपथ मत करें वहां जाकर इस तरह की, बाकी कहीं उन्हें अपने ऑफिस में कार्यालय में लेनी है वो लें जाकर के, खुली छूट है। आपकी लड़ाई सिर्फ शहीदों के मामले में है, पंजाब के जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, उस पर थोड़ा टेक दोगे आप? उस पर टेक मैं यही दूंगा कि उनकी मांग सरकार को सुननी चाहिए। जायज़ है मांग? उनकी मांग जायज़ है कि नहीं, मैंने बहुत डीपली जाकर नहीं देखा है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, लेकिन उनकी जो मांग है, किसानों की मांग, वो जायज़ ही होगी, सरकार सुने। बस अगर कहीं पर उनसे मुझे आपत्ति हो सकती है कि जब मैं आया जालंधर में शहादत दिवस मनाने, तो उधर चंडीगढ़ से होते हुए मेरी बस, क्योंकि जिस बस में मैं आ रहा था, परसों ही आया ना, 3 दिन पहले, तो वो बस वाला कहने लगा कि हमने कहा भाई इधर से क्यों नहीं गए, उधर क्यों इतना घुमा के पंचकुला से चंडीगढ़ से आओगे, तो उसने कहा साहब वैसा ऐसा वहाँ बैठे हैं, उनकी बात है ये, उस बस वाले की जो लेकर आ रहा था, कि बस को वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे नहीं बोलना चाहूँगा, फिर वो ये होगा कि किसान, आप बोलिए बोलिए, किसान तो कुछ नहीं करते बस को वैसे। ऐसा उन्होंने बोला, तो मैंने कहा भाई जिधर से ले जाना ले जाओ। तो वो जो उतना लेट हुआ, वो थोड़ा सा खला। पर आपको पता है कि जो नेशनल हाईवे है, फ्यूर एंड इंफॉर्मेशन, कि नेशनल हाईवे तो सरकार ने बंद किया है, किसानों ने तो नहीं किया। अब क्यों बंद है, क्या है, मैं उस बॉर्डर पे भी नहीं गया, मैंने कहा आपसे कहा, ये बस वाले ने जो मुझे कहा मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी वो क्या प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी मांग है, भाई वो करें, सरकार है, मांग रखना हमारा हक है। मेरा होता है मैं भी मांग रखूंगा, मैं भी आंदोलन करता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश में किया था, वहाँ यूपी में से बड़े बड़े आंदोलनकारी निकले हैं, और जैसे जिनका नाम आप लेके घूम रहे हो वो तो इतने मतलब पाक है, इतने पवित्र है, मुझे लगता है कि उनके आगे तो कुछ शब्द ही कम पड़ जाते हैं। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19A का है, तो किसान अपनी बात रखने जा रहे हैं, वो गलत है सही है वो तो बाद में देखा जाएगा ना। तो जब हमें बात रखने का ही नहीं है अपने मुल्क में, तो आज़ादी का कोई तो फायदा नहीं है। मैं इसका टेक लेना चाहता था। नहीं, तो अपनी बात रखें, उनको देखिए वो सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही, अगर सरकार से मुझे कहना होगा मैं यही कहूँगा, सरकार सुने उनकी बात। जी। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, आप बोल रहे थे कि आप घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए कोई उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक बड़ा सम्मान देने के लिए हमने सरकार से पहले भी बात करी, पर जो इसके पहले गवर्नमेंट थी उनके पास, उन्होंने कहा बजट नहीं उतना बड़ा हमारे पास। फिर योगी सरकार आई, हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि हम ज़मीन दे सकते हैं, आप प्रतिमा बना लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हम बनाते हैं। हम मीन्स आप सब मिलजुल कर पूरा देश, क्योंकि उसका 90 करोड़ का बजट है उस प्रतिमा। क्राउड फंडिंग होगी? क्राउड फंडिंग हर तरह से, कॉरपोरेट भी देंगे, हर तरह से, एक मुची भी उसमें दे रहा, दिया है, इसी जालंधर ने दिया है। तो वो प्रतिमा हम 90 करोड़ की जो इतनी बड़ी बना रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि उसको देखें बच्चे आने वाले समय में। उसके नीचे संग्रहालय भी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और एकमात्र सबसे बड़ी इकलौती चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो प्रतिमा है। आपको लगता नहीं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी तो इतना बड़ा है, तो आपको सिर्फ ज़मीन दे के टाल दिया? देखिए, ज़मीन देकर टाल दिया, उससे पहले तो बात ही करने को कोई तैयार नहीं था। पर फिर भी तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत वो होते हैं। अगर हम इतना ही कहते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में कितना पैसा लगा है आपको पता है? 3000 करोड़। तो इतने से तो आपका तो 90 करोड़ में हो रहा है। नहीं, तो मैं ये देखूंगा कि उसमें कितना लगा है, और वो मतलब मेरी प्रतिमा में कोई देगा या नहीं देगा। मैंने देखा, 2 साल इंतजार किया, उन्होंने कहा आप लैंड ले लीजिए, आप बना लीजिए। मैंने कहा आप लैंड ही दीजिए, तो उन्होंने मुझे 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन दी। उस पर बनाने का काम जो उन्होंने दी, उसका शुक्रिया, धन्यवाद योगी सरकार का। बनाने का काम हम ये HRA जो क्रांतिकारियों का संगठन है, आपको मैं भी बता दूं, वही हम लोग चलाते हैं अभी, जो बिस्मिल साहब उन लोगों ने खड़ा किया था HRA, वही हम लोग चलाते हैं नॉन पॉलिटिकल रूप से। तो उसी के माध्यम से प्रतिमा बना रहे हैं। हमारे किशन लाल शर्मा जी यहाँ के अध्यक्ष पंजाब प्रांत के, आप उसके वाइस महामंत्री हैं विनीत शर्मा जी। पूरे देश में अभियान चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले चला था, तो बीच में अभी
श्री राम मंदिर का निर्माण था, तो उस कारण से वो रुक गया था। अभी फिर से वो अभियान शुरू होगा। तो कुछ जाते समय बात कहना चाहो, क्योंकि आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे सुनने वालों को भी बता दीजिए कि अगर फंडिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। फंडिंग कर सकते हैं, हिंदुस्तान HRA का पेज है सोशल मीडिया पर, या अमित आज़ाद मेरा खुद का इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, वहाँ जा कर के पूरी जानकारी इसके बारे में वो ले सकते हैं। और वहाँ पर QR से लेके सारी जो डिटेल्स हैं ट्रस्ट की, वो सब है वहाँ पर। 1 रुपए से लेकर के जितना भी जो दे सकता है, वो पूरे देश से हम एक एक व्यक्ति को उसमें जोड़ने का एक तरीका है जी, कि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़े इस माध्यम से। वहाँ पे कोई लाइब्रेरी भी होगी या फिर कोई आर्कियोलॉजी होगी, और जो शहीदों से जुड़े चीज़ें होंगी, उनसे जो अभी अवेलेबल हैं वो होंगी वहाँ पर संग्रहालय में नीचे जी। बहुत अच्छा उपराला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਕਾਈਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ।